Today we'll start with the poem Where the Mind is Without Fear. This is a poem by Rabindranath Tagore. This is the chapter in your books. Okay? So Rabindranath Tagore was a poet, a Bengali poet, a great Indian poet, philosopher, and Nobel Prize winner. उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, एंड ही इज अ very famous, very intelligent, and award-winning poet and story writer. He wrote this poem. He wrote this poem about. He wrote this for his country. अगर आपको पता हो, इंडिपेंडेंस से पहले we all lived in fear. We were afraid of the English, the Britishers. They were very cruel to us, right? तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी in his mind उन्होंने एक ऐसा विजन बनाया कि what kind of country do I want? What kind of people do I want? What kind of citizens do I dream for my country? तब उन्होंने ये पोम लिखी Where the Mind is Without Fear. So this was written long back before we gained independence. हमारे इंडिपेंडेंस से पहले रविंद्रनाथ जी का ये एक सपना था कि मुझे देश चाहिए तो कैसा चाहिए, मुझे लोग चाहिए तो मेरे सपने में मेरी एक विजन है that my citizens, Indian citizens, should be fearless. So this is a poem about that. It's a beautiful poem. But before we start learning the poem, what we are going to do is we are going to learn the new words in the poem so that we understand the poem better. ठीक है बेटा? Fear. कौन बताएगा मुझे? What is the meaning of fear? कोई एक बच्चा हाथ उठा के बताएगा? Fear माने डरना. वेरी गुड. तो उस समय in our country डर का माहौल था. People were scared. People were afraid. So fear means being scared, being afraid. For example, she has fear of the dark. She has fear of snakes. She's afraid of darkness. So fear एक शब्द है जो हमारी पोम में it will reoccur again and again. Okay, the next word is fragments. Fragments मतलब टुकड़े, parts. तो उस समय देश का क्या हो रखा था? We were divided into fragments. Fragments of caste, fragments of religion, fragments of color. Because Britishers को ये डर था कि if we unite as a country, तो हम उनके कंट्रोल में नहीं आएंगे. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई. सो दे डिवाइडेड अस. दे सेड आप तो ब्राह्मण्स हो, आप तो क्षत्रिय हो, आप तो नॉर्थ इंडियन हो, आप तो साउथ इंडियन हो, आप तो गोरे हो, आप तो सांवले हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो. तो उन्होंने लोगों को अलग अलग फ्रैगमेंट्स में बांट दिया. क्यों बांट दिया? Because then it was possible for them to divide and rule. So fragment का मतलब होता है broken pieces, parts. An example sentence would be the plate broke into fragments. हाथ से कोई कप गिर गया है, प्लेट गिर गया, तो क्या होता है? It breaks into fragments. Fragments is parts, incomplete parts of a whole, लेकिन वो टुकड़ों में है, so it is no use. So the Britishers, they divided us into fragments because when we were in fragments, we were weak.
We were easy to control. Narrow domestic walls. डोमेस्टिक मतलब घरेलू, नैरो मीन्स पतली पतली. तो जब हम अपने घर में सीमित हो जाते हैं, अपनी छोटी छोटी डब्बों में सीमित हो जाते हैं, जब मैं अपने आप को सिर्फ मैं कहूँ मैं सिर्फ ये घर मेरा है और मैं घर से बाहर कूड़ा गली में निकाल दूं कि गली तो मेरी नहीं है. सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ इनटू नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. सो रविंद्रनाथ जी का सपना था कि छोटा सोचना बंद करो, पूरा देश आपका है. द होल कंट्री इज योर्स, यू आर ऑल वन. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन any of you. You can have different color, caste, creed, religion, eating habits. You can dress differently. तो उनका सपना ये था कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स से निकलो. ये छोटे छोटे जो आपने डब्बों में अपने आप को बांध रखा है, बॉक्सेस में अपने आप को डाल रखा है, वो तोड़ो और बड़ा सोचो. पूरी कंट्री आपकी है. द होल कंट्री, नेशन इज योर्स. सो he wanted us to think beyond narrow domestic walls. मुझे लगता है सिर्फ ये घर मेरा है, सिर्फ ये कमरा मेरा है, सिर्फ ये कॉलोनी मेरी है. वो कहते नहीं, पूरा देश आपका है. So do not divide yourself into small divisions. Divisions of caste, divisions of place, divisions of color, divisions of religion. कहते ये सब अपने आप को इन बाड़ों में मत बांधो, इन रिस्ट्रिक्शंस में मत बांधो. आप पूरा देश आपका है. स्ट्राइविंग, कौन बताएगा मुझे स्ट्राइविंग का मतलब? स्ट्राइव करना, मेहनत करना, कोशिश करना, पूरे दिलो जान से कोशिश करना. दैट इज स्ट्राइविंग. व्हेन यू वर्क वेरी हार्ड फॉर समथिंग with a lot of devotion and effort, that is striving. Perfection. Perfection मतलब जब हम कुछ चीज परफेक्शन से करना चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए. सो वी वांट परफेक्शन, कि बिल्कुल परफेक्ट हो, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा गलत ना हो, बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया. उसको कहते हैं परफेक्शन. जब आप बिल्कुल कुछ चीज परफेक्टली करना चाहते हैं, दैट इज परफेक्शन. द नेक्स्ट वर्ड इन द पोएम इज रीजन. प्रेम जी, आपके बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं? रीजन. रीजन मतलब लॉजिक. किसी भी चीज का कारण देना, सोचना कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है. तो सोच समझ के एक चॉइस करना, दैट इज रीजन. ड्रेरी. ड्रेरी मतलब बोरिंग. बहुत ही ड्रेरी है, इसमें तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, सीखने में, बहुत ही बोरिंग काम है. That word is dreary. Now the next word is desert. राजस्थान हमारा डेजर्ट है, राइट? जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ पे सूखा रेत होता है, where there are not enough trees and plants. So a desert. Camels live in the desert, snakes live in the desert, cactus is found in the desert, right? So desert is where there is no greenery. There's a lot of dry sand and hot season. Very good. The next word is dead habit. Habit हमें पता है क्या होता है, तो dead habit क्या होता है फिर? Dead habit मतलब वो बेकार की आदतें जिनसे हमें कुछ हासिल नहीं होता. Useless habits that don't take us anywhere, that don't serve any purpose, which are habits which are not good for us. एक आजकल
डेड हैबिट है 24 घंटे इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, है ना, सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं हम, कुछ नहीं मिलता सीखने को उससे। वही टाइम हम अगर पढ़ाई में लगाएं, इफ वी स्पेंड इट इन समथिंग एल्स, वी विल लर्न मोर, राइट? सो दैट इज डेड हैबिट. डेड हैबिट इज अ यूजलेस हैबिट. वो आदत which is a part of our nature and which has zero benefits. Okay. Led forward. Led forward means to lead somebody forward, to move ahead. Ever widening. Ever means हमेशा, widening मतलब चौड़ा होना. So ever widening means ever growing. बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा. That is ever widening. So the more you study, the more you learn, your mind is ever widening. So what you know in grade 10, you didn't know in grade 8. Grade 8, you didn't know in grade 6. तो जब आप केजी में स्कूल में आए, आपको इतनी समझ थी, फिर आपकी समझ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, and your understanding is ever widening. ठीक है बेटा? हेवन, हेवन हम सबको पता है, स्वर्ग. ऑपोजिट ऑफ हेवन इज हेल, हेल इज नरक, है ना? सो हेवन इज स्वर्ग. अवेक, अवेक मतलब जागना. यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू आर अवेक, राइट? ट्रूथ, ट्रूथ के दो मतलब होते हैं. वन इज ट्रू एंड फॉल्स. फॉल्स इज गलत, ट्रू इज सही. लेकिन ट्रू का एक और मतलब होता है सच्चाई, जो सच है, जो सही है. फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आजादी. हम उस समय वी वर फाइटिंग फॉर फ्रीडम. जब टैगोर जी ने पोम लिखी, वी वर नॉट फ्री. सो फ्रीडम वाज अ ड्रीम. सो व्हेन यू से फ्रीडम, you mean freedom to practice your religion, freedom to eat what you want, read what you want, live your life the way you want, and have rules that are in your favor. जो कोई भी एक आज़ाद इंसान करना चाहता है. Of course freedom comes with responsibility, है ना? मेरे फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मैं आपका फ्रीडम आपसे, मेरा फ्रीडम है तेज तेज गाने सुनना, लेकिन आपका फ्रीडम है कि आप शांति से रहो. तो मुझे उस ढंग से गाने सुनने पड़ेंगे कि मेरे इस गाने सुनने से आपको डिस्टर्बेंस ना हो. तो फ्रीडम ऑल्सो कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट ये पोयम टैगोर जी ने फ्रीडम को दिमाग में रखते हुए लिखी थी, बिकॉज दैट टाइम इंडिया डिड नॉट हैव फ्रीडम. वी वर नॉट फ्री. ठीक है बेटा? तो अब हमने ये वर्ड्स सीखे हैं, हम एक बार इसकी समरी पढ़ लेते हैं. इसमें रविंद्रनाथ जी कहते हैं, it is a prayer for a better and a free India. When we were ruled by the British, we were not free. So Rabindranath Tagore's dream was where the mind is without fear. सबके दिल में, दिमाग में डर बैठा हुआ था उस समय, जब हम अंग्रेजों के राज में दबे हुए थे. So his mind, his vision, his dream was that all my countrymen, all my people should be, उनके दिमाग से, उनके दिल से ये डर निकल जाए और वो बिंदास खुल के अपनी जिंदगी जिए. So where the mind is without fear, if there is no fear in the mind, you can live a free life. So he dreams of a country where people are brave and proud. When we are afraid, क्या होता है? You can't be brave, right? Fear is the opposite of brave. When you're afraid, you're not brave. When you're free, you feel brave. You're proud of your religion, your country, who you are, right?
So he wanted Indians to get back their self-respect. He wanted Indians to get back their self-respect and that they live a life of dignity, of bravery, and of pride. Then he wants everyone to have knowledge कि सब पढ़े लिखे अच्छे से सीखें, अच्छी अच्छी चीजें सीखें, जिंदगी में आगे बढ़े. Right? It's very important to have knowledge to grow. Right? He does not want people to be divided by religion, caste, or language, which he calls narrow domestic walls. So उस समय क्या हो रखा था? अंग्रेजों ने हमको फ्रैगमेंट्स में बांटा हुआ था into narrow domestic walls कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, तुम वो, ताकि तुम्हें ये ना महसूस हो कि हम सब एक हैं. तो इसलिए उन्होंने हमें टुकड़ों में बांटा हुआ था into fragments. So this is something Rabindranath Tagore did not want. He knew that if people are not together, if they are not one, not be able to be free. Tagore wishes people the truth and always work hard to improve. He says हमें मेहनती होना चाहिए, हमें सच्चाई और समझदारी से काम करना चाहिए और मेहनत से नहीं डरना चाहिए. Because unless you work hard, you can't grow in life. You can't learn new things. You can't be a better person. और रविंद्रनाथ जी को पता था that to do all of this, you need to be educated and you need to work hard to improve. He asks people to use clear thinking like a clear stream and not follow old bad habits. तो वो ये बहुत इंकरेज करते थे कि कोई भी आपकी डेड हैबिट है, बैड हैबिट है, जिससे आपको फायदा नहीं हो रहा है, गिव अप दैट हैबिट. और एक साफ नदी की तरह, like a clean stream, flow, grow, learn, and become a better person, become a better citizen, and bring pride to your nation, to your country. And all that is only possible when the mind is without fear. अगर दिमाग में डर है, अगर दिल में डर है, तो ये नहीं हो सकता. He prays that God will guide people forward into learning and growing. Because he was educated, he was a poet, he was a story writer, and he was an intellectual, he was a Nobel Prize winner. उनको पता था कि बिना जिंदगी में लर्न किए, ग्रो किए, हिम्मत किए, मेहनत किए हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो खुद बहुत पहुंचे हुए इंसान थे और वो सब उन्हें अपनी मेहनत से मिला था. So he wanted everyone to follow his path so that people continue to learn and continue to grow. और जब ऐसा होगा, when everyone is learning, everyone is growing, people are not thinking in small boxes, लोग बड़ा सोच रहे हैं, what will happen to the country? He says it will become a heaven of freedom. ये एक आजादी का स्वर्ग बन जाएगा. It will be one place where everyone is happy, everyone is growing, everyone is one and together, and my country will be one of the most beautiful places on earth. And end में he prays and he says, God, he says, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. एंड में वो कहते हैं, भगवान मेरे देश को तू उस तरह के स्वर्ग में, take my country into this heaven of freedom. So at this point, Rabindranath ji was only dreaming. He was praying. ये उनका एक सपना था दिमाग में. This was not a reality. Right? When he sat down, when he thought about his country, he was like, this is the country I want.
This is the nation I want. These are the kind of people I want in my country. So end में वो भगवान को प्रे करते हैं कि भगवान इस तरह के आज़ादी के स्वर्ग में, हेवन ऑफ फ्रीडम में, लेट माई कंट्री अवेक, कि एक दिन मेरी कंट्री जागे, उठे, आंखें खोले और वो उस हेवन ऑफ फ्रीडम में हो. So this is a beautiful poem by Rabindranath ji. So I hope आपको पोम कुछ समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी. मैं आपके साथ क्लास के बाद मैं ये रिसोर्स शेयर करूंगी. इसमें एक्सरसाइजेस करें हम. क्लास के बाद मैं आपको आपकी टीचर्स आपको ये भेजेंगी, ये जो हमने नए शब्दावली सीखी है, द न्यू वर्ड्स दैट वी हैव लर्नड, their meaning, their sentences, and there will be a quiz with MCQs of these words in the poem, which will help you learn these new words. ठीक है बेटा? And then I'll also share इसमें answers भी नीचे दिए होंगे. You can check your answers at the bottom of the document, and then there will also be a summary given to you. Okay बेटा, चलो let's attempt the questions in the book together. एक चीज ध्यान रखिएगा, when you have a class with me, I want you to sit with your notebook, your book and your pen. Because हम writing करेंगे बेटा, हम रेडियो की तरह सिर्फ सुनेंगे नहीं टीचर को, हम साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे. चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. In your notebook, write down the lines from the poem as a proof of the following. पोम में कौन सी लाइन है जो ये कहती है that Tagore wishes for a nation where people are truthful? सर आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो आंसर जानता है तो प्लीज अनम्यूट करके उसको बोलने को बोलिएगा. कौन सी लाइन है पोम में where Tagore ji says that he wants a nation where people are truthful? कौन सी लाइन है बताओ? वेरी गुड, शाबाश. ये लाइन है, ये आप सामने लिखेंगे. उसका आंसर ये है where words come out from the depth of truth. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The poet would like everyone to work hard to reach their goal and in the long run reach perfection. तो perfection immediately तो आती नहीं है, है ना? तो पहले you start by working hard, and when you keep working hard you become perfect at something, right? So which is the line in the poem? पोम में कौन सी वो लाइन है जिसमें poet says कि सबको work hard करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और फिर वो एक लंबे दौर में एक टाइम के बाद, कुछ समय के बाद वो परफेक्शन पे पहुंच जाएंगे. Which is the line? कौन बताएगा? कोई दूसरा स्कूल? प्लीज बच्चों से पूछिएगा, मुझे समझने में मदद मिलेगी. हाउ मच हैव दे अंडरस्टूड? जिन स्कूल्स के कैमरा बंद है वो भी सर ट्राई कीजिएगा प्लीज, बच्चों से पूछिए. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. अगर हम थकेंगे नहीं, if we are tirelessly striving, बिना थके हम मेहनत कर रहे हैं, है ना? लगे रहो मुन्ना भाई. जब हम लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, continuously striving, then what happens?
You stretch your arms towards perfection. मतलब आप perfection की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं. And you ultimately achieve perfection. So this is the line where tireless striving stretches its arms towards perfection. This is the line where Tagore is talking about कि you continuously walk towards a goal और फिर over a period of time कुछ समय के बाद आप perfection की तरफ चलने लगते हैं, perfect होने लगते हैं. Okay, the next question is, the poet wishes that everyone in his country holds his head high in dignity. तो वो कहते हैं एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, मेरी कंट्री का एक एक बंदा, एक एक पर्सन, एक एक इंसान गर्व से, इज्जत से अपना सर उठा के जिए. So it's not just people who are rich, people who are famous, people who are powerful. He says every single person in my country should hold his head high in dignity. समाज का हर सदस्य, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी कल्चर से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, सबको इज्जत से, डिग्निटी से जीने का अधिकार है. और ये पोइट का सपना है, पोइट की विश है. So where does he say that? Who is going to tell me? कौन बताएगा? The poet wishes that everyone in his country holds his head high in dignity. Where does he talk about dignity? In the entire poem, he is talking about dignity. If you are knowledgeable, the very first line he says, when the mind is without fear and the head is held high. So that's the very first poem, line of the poem. He starts with this. सबसे पहली विश उनकी यही है कि हर एक इंसान मेरी कंट्री का डिग्निटी से सर उठा के जिए. Right? So the very first line in the poem, where the mind is without fear and the head is held high. You have to see, this poem was written at a time where we were not free. We were trying to be free. We were struggling to be free. Okay. The poet dreams of a nation where knowledge should be free for all. है ना? जो कैटापुल्ट हमारे लिए करने की कोशिश कर रहा है, जो सपना रविंद्रनाथ टैगोर जी का सपना पूरा कर रहा है कि नॉलेज जिसको भी पढ़ना है, जिसको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, उसको नॉलेज फ्री में अवेलेबल हो, बस उसको मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए. ये कौन सी लाइन में कहते हैं टैगोर जी? कहाँ पे बेटा?
Where knowledge is free. Very good. Good job. Excellent. Where knowledge is free. तो फाइनली इतने सालों बाद शायद हम लोग मिलके रविंद्रनाथ टैगोर जी का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? देखो उन्होंने कितने साल पहले ये सपना देखा था, कितने विजनरी थे वो. He could look into the future. उनको पता था कि if the nation has to progress, तो हमें एजुकेशन सबको अवेलेबल करनी बहुत जरूरी है. So that man could see the future. ऐसे लोगों को कहते हैं विजनरी. People who have a vision of future, what future needs to look like. The poem is a prayer. इस पोम का सच्चाई से उस समय जो हालात थे उससे कोई लेना देना नहीं है. पोएट एक कमरे में बैठ के एक सपना देख रहा है, एक विजन देख रहा है और एक प्रेयर कर रहा है, राइट? कौन सी लाइन से हमें पता चलता है कि जब ये पोम लिखी गई थी, एट दैट टाइम दिस पोम वाज अ प्रेयर, इट वाज अ ड्रीम, देयर वाज नो रियलिटी लाइक दिस. हमारी उस समय सच्चाई बिल्कुल अलग थी, तो इसलिए ये पोम सिर्फ एक सपना और प्रेयर थी. प्रेयर किसको करते हो आप? ऑलमाइटी को, भगवान को, ईश्वर को, जो भी ऊपर बैठा है, जो हमें प्यार भरी नजरों से आशीर्वाद दे रहा है. So which line tells us that this is a prayer? कौन बताएगा? Come. कौन बताएगा that this poem is a prayer? बताओ बेटू, आपने हाथ उठाया बेटे. गढ़चिरौली स्कूल, एक बच्चा पास आओ, बोलो प्लीज, अनम्यूट करिए अपने आप को. सर मैम जो भी है बच्चे से पूछिए प्लीज. हाँ बेटा आइए, शाबाश. बोलो बेटा. बोलो बोलो बोलो. बोलो. Where the mind is laid forward by sea. Where the mind is laid forward. कौन सी लाइन बोल रहे हो बेटा? लास्ट में से थर्ड. हाँ, लास्ट वाली. वेरी गुड. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. हम कहते हैं ना परम पिता परमेश्वर, my father. So वो भी जो भी वो शक्ति ऊपर बैठी है उसको वो हाथ जोड़ रहे हैं. So this is a prayer, right? Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Very good. शाबाश, बहुत समझदार बच्चे हो. चलो अब हम इसको मैच करते हैं. Read the columns carefully and match the expressions with their meaning. हमने word meanings किए हैं. The head is held high. सी कह रहे हो? वेरी गुड. जिस बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और एक आत्म स्वाभिमान होता है वो सर उठा के चलता है. वेरी गुड. इसका आंसर है सी. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. अपने आप को छोटे छोटे बांधना. मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं.
वेरी गुड, डी, नैरो माइंडेडनेस, मतलब दिमाग में अपने आप को छोटे छोटे बक्सों में बांधना, छोटे छोटे बाड़ों में बांधना, छोटी 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 सोच, सीमित सोच और आइडिया से अपने आप को बांधना, नैरो माइंडेडनेस। वेरी गुड। नॉलेज इज फ्री, knowledge is free. E, very good. Education is given to all. Yay! बहुत अच्छे, शाबाश, दिल खुश कर दिया. I'm so happy. Okay. Yes, Jimas, आप भी बच्चों से आंसर कराइए प्लीज. डेप्थ ऑफ ट्रूथ. Depth of truth. नहीं समझ आ रहा. E हो गया, D हो गया. D. B. Sincerity of heart. Okay. चलो देखते हैं इसको, लास्ट में हम चेक करेंगे हमने सही किया है या नहीं. माइंड इज विदाउट फियर. ए, वेरी गुड. फियरलेस पर्सन, बिल्कुल सही. स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स. नहीं, एम एट परफेक्शन होगा. ये देखो, एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन. थॉट बढ़ रहा है, एक्शन बढ़ रहा है, इसका क्या होगा 9th का? आई, वेरी गुड. ब्रॉडनिंग आउटलुक एंड एटीट्यूड. आपका आउटलुक बढ़ रहा है, आपका एटीट्यूड बढ़ रहा है, आपका थिंकिंग चेंज हो रही है, तो दिस विल बी दिस. डेड हैबिट्स. F. Oh. Okay. Dead habits, ये थोड़ा सा डेड हैबिट्स, मतलब ये मुझे इसमें लग नहीं रहा, इसमें कुछ है, इसका कुछ गड़बड़ है थोड़ी सी. क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन. ये क्या हो रहा है? क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्लियर थिंकिंग, है ना? क्लियर थिंकिंग. स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स. H. ठीक है. Okay, very good. So we've done this. Let's move on to these questions. Very good. How is the world broken into fragments? How is the world broken into fragments? The world is broken into
Fragment by dividing. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो जब आप डिवाइडिंग कहते हो, मेक श्योर यू स्पेसिफाई डिवाइडेड इनटू रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रीजन. हम तो नॉर्थ इंडियन है, हम तो साउथ इंडियन है, हम तो वेस्ट इंडियंस है, ईस्ट इंडियंस है. तो डिवाइडिंग योरसेल्फ इनटू एनी फ्रैगमेंट. And पूरा दुनिया, if you see, people are divided into fragments. And that is what Rabindranath Tagore ji is talking about. That is what Britishers did to us. उन्होंने हमें fragments में divide कर दिया. So you're right, the word is broken into parts, but specify those fragments. ठीक है बेटा? Caste, creed, color जरूर mention करिएगा when you are answering this question. नहीं तो आपके marks आपको कम मिलेंगे. ठीक है? आपको इस क्वेश्चन के लिए पूरे मार्क्स चाहिए, तो आपको ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, सोसाइटीज, ये सब मेंशन करना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द फ्रेगमेंट्स. दीज आर द फ्रेगमेंट्स. एक फ्रेगमेंट है रिलीजन का, कि वो उस रिलीजन का है, वो इस रिलीजन का है. दूसरा फ्रेगमेंट है कास्ट का, वो उस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है. क्लास का, ये अमीर है, ये गरीब है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है, ये अपर मिडिल क्लास है. कलर, वो गोरा है, वो काला है, वो सांवला है, वो गेहुआ है. तो ये सब हमारी लाइफ में हमने फ्रैगमेंट्स बना रखे हैं. सो मेक श्योर यू मेंशन दीज 4 व्हेन यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन बेटे. ठीक है? ओके, एक्सप्लेन व्हाट टायरलेस स्ट्राइविंग शुड बी फॉर. टायरलेस मतलब बिना थके, स्ट्राइविंग मीन्स कंटिन्यूअसली मेहनत करना. सो किस चीज के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर इज सेइंग दैट यू शुड बी टायरलेसली स्ट्राइविंग? Who will tell me? Continuously working hard for being a better person, for reaching perfection, for reaching truth, for developing new skills. वही तो रविंद्रनाथ जी शुरू से कह रहे हैं कि मेहनत करो to be a better person, to be more intelligent, to be more open minded, और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो that you reach perfection, right? So tireless striving should be for perfection, for growth, for learning. है ना बेटा? To be a better person, to be a fearless person, to be a brave person. Okay. Question. Where words come out from the depth of truth. इसका क्या मतलब है? People speak truthfully. We speak truthfully. Very good. So truthfully माने? Sincerity of the heart. तो हम अनट्रूथफुल कब होते हैं? वेरी गुड. या तो हम डर रहे हैं इसलिए हम झूठ बोलते हैं, है ना? हमें लगता है मम्मी डांटेगी, नहीं मैंने होमवर्क कर लिया, नहीं ये मैंने नहीं तोड़ा. तो when do we lie? When we are afraid. और जब हम when the mind is without fear, तो हम सच बोलेंगे, हमें डर नहीं है. मुझसे गलती हुई है मम्मी, मुझे माफ कर दो, हाँ मुझसे ये टूटा है ना? डांट पिटेगी तो खा लेंगे, लेकिन हम डर से झूठ नहीं बोलेंगे. सो वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ. जो सच है वो हम बोलेंगे. तो झूठ हम डर से बोलते हैं या झूठ हम लालच से बोलते हैं, है ना? तो अगर हमारे दिल में लालच नहीं है और झूठ नहीं है, इफ वी आर नॉट अफ्रेड एंड इफ वी आर नॉट ग्रीडी, we will not lie, we will say the truth, right? अगर मुझे 100 का नोट पड़ा मिला है और वो मेरा नहीं है और मैं बोलूं, कोई मुझे पूछे कि तुम्हारा गिरा है क्या, मैं बोलूं नहीं ये मेरा नहीं है, राइट? सो अगर मैं लालची होंगी, आई एम गोइंग टू लाई, आई एम गोइंग टू से हाँ ये
I'll take it, right? But if I am truthful, अगर मुझे लालच नहीं है, I'll say नहीं, ये मेरा नहीं है. अगर मेरा होगा तो मैं कहूँगी हाँ मेरा है, मेरा नहीं होगा तो मैं कहूँगी नहीं मेरा नहीं है, right? तो दो रीजन से हम झूठ बोलते हैं, या तो डर से या लालच से. So when the words come out from the depth of truth, that means we are not afraid, we are fearless, we are not greedy, we are honest and fair. ठीक है बेटा? This is what you're going to write for this answer. Who is thee in this poem? What does the poet appeal to thee to do? कोई is God. Very good. Thee is God here, and the poet is appealing to God the Father. Param Pita Paramatma से वो pray कर रहे हैं. Thee here stands for God. God can be God in any religion, right? Christians also call God Father. Hindus also call God Father. Muslims also call God Father in their own language. But जो हमें बहुत प्यार करता है, हमारा ख्याल रखता है, ऊपर आसमान में कहीं बैठा है, उसे हम प्रे कर रहे हैं अपनी भाषा में. So in this poem, thee stands for God, thee stands for the Father. And what does he appeal for thee to do? He says, जो भी मैंने सपना देखा है, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. He says, ऐसे सपनों का देश, this kind of dreamland, God, please create for my country and for my people. So he is asking for God's blessings. Amita, last question हम करते हैं. What qualities does the poet wish to inculcate in his countrymen? Dignity. Yes. So he wants them to be fearless, live with dignity. He wants them to be educated, right? Yes. Then he wants them to be together as one and think big, think broad, think wide, think open-mindedly, and not in tiny fragments. And he wants them to work continuously towards perfection. He wants them to get rid of bad habits which are not productive. जिन habits का कोई फायदा नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए. That is what he dreams. And where people are continuously growing, learning, and broadening their outlook and moving towards perfection. तो पूरी poem आप निकाल सकते हैं the qualities that the poet wishes to inculcate in his countrymen. बेटा आज क्लास के बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ तक फिल इन द ब्लैंक्स तक इसको अपनी नोटबुक में लिख के करेंगे, ठीक है? और ये जो मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाया है, ये मैं आपके टीचर्स को भेज दूंगी, वो आपको ये भी शेयर कर देंगे. यहाँ से आपको वर्ड मीनिंग समझ में आ जाएगा. और हियर इज विल बी अ समरी ऑफ द पोम एंड क्वेश्चन आंसर्स वी हैव डिस्कस्ड. हमने डिस्कस कर लिया है क्लास में, सो यू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. एक चीज याद रखना बेटा, अगर आप साथ के साथ घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप सब भूल जाएंगे. तो कौन कौन आज घर जाके प्रैक्टिस करने वाला है, ये एक्सरसाइज पूरी करने वाला है कॉपी में? आप लोग नहीं करने वाले हो? थैंक यू गडचिरोली, थैंक यू जमास के बच्चे. सब करिएगा बेटा, ये अपने लिए करिएगा, ये मेरे लिए करिएगा, ये हम सब के लिए करिएगा. आप सब देश का फ्यूचर है. आप जितना मेहनत करेंगे, जितने अच्छे बच्चे बनेंगे, उतना आप देश को आगे ले जाएंगे. थैंक यू. हैव अ गुड डे.
बाय बेटे. मुलांना 1 मिनिट थांबा. एक छोटीशी सूचना आहे सर्वांसाठी. सर्व मुलांसोबत असणाऱ्या सर्व शिक्षकांसाठी ही सूचना आहे. आपले जे व्हॉट्सअप ग्रुप आहे, ज्या ग्रुपमध्ये आलेल्या लिंक सोबत तुम्ही जॉईन करता, ती लिंक सेपरेटली तुमच्या ग्रुपमध्ये येते. मी तुम्हाला एकदा पुन्हा दाखवते. तुमच्या ग्रुपवरती अशा प्रकारचा मेसेज येतो, क्लास 10 इंग्लिश मीडियम आणि क्लास 10 मराठी माध्यम असे 2 वेगवेगळ्या लिंक येतात. तुम्हाला इंग्लिश मीडियम साठी येणाऱ्या इंग्लिश मीडियम असं लिहिलेल्या असणाऱ्या मेसेजच्या खालच्या लिंक वरून तुम्हाला तुमच्या क्लाससाठी जॉईन करायचं आहे. ओके. आता 9वी साठी 8वी साठी सेम ह्याच प्रकारे मेसेज येतील. इंग्लिश मीडियम साठी वेगळे आणि मराठी माध्यमासाठीचे वेगळे. तर इंग्लिश मीडियम लिहिलेल्या मेसेजच्या खालची जी लिंक आहे ती तुम्हाला जॉईन करायची आहे, जेणेकरून तुम्ही योग्य वर्गामध्ये जॉईन होऊ शकाल. ओके. आय थिंक सगळ्यांना क्लिअर झालं असेल. ओके मुलांनो, आपण भेटूया नेक्स्ट लेक्चर मध्ये उद्या. तुम्ही आता सर्वजण जाऊ शकता. बाय बाय.